So beta, before we start about circles, one or two things again like we defined earlier. दो तीन चीजें मैं आपको याद करा रहा हूँ. देखो क्या बातें हमने की थी. ये आपके पास सर्कल है. So some of the things are already well known to you, like a circle has a center. Let's say O is the center of the circle. Everyone knows that if I draw a line segment, from one point on the boundary of the circle to another point on the boundary. अब ये वाला पॉइंट है, ये बाउंड्री के ऊपर है. ये वाला पॉइंट है B, ये भी बाउंड्री के ऊपर है. तो A and B are points which lie on the boundary of the circle. Then the line segment, the straight line segment AB is called as a chord of the circle, right? And everyone knows which is the largest chord in the circle. Which is the largest chord in the circle? The chord which passes through the center is the largest chord of the circle. The chord which passes through the center is the largest chord of the circle, and we call that chord as the diameter. Everyone understands that? बिल्कुल easy है. Okay. तो ये जो आपका ए बी कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड ए बी, सिर्फ ए बी लिखने से पता नहीं चलेगा क्या मीनिंग है, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्क ए बी ऑल्सो. नहीं, तो ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है, ये नहीं, सर्कल का जो ये वाला पार्ट है, व्हाट इज आर्क ए बी? दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द आर्क. सर्कल के एक हिस्से को, एक टुकड़े को, एक पोर्शन को हम आर्क बोलते हैं. जैसे हम यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ले सकते हैं, ये वाला जो टुकड़ा है इतना सा, वो आर्क बन जाएगा, राइट? बट ऐसे करने से भी पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनर या मेजर आर्क. नहीं, सो दिस इज द मेजर आर्क ए बी. दिस इज द मेजर आर्क एंड द स्मॉलर वन इज द माइनर आर्क. देन व्हाट डू वी कॉल दिस एज? सर्कल के इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द सेगमेंट. ये मेजर सेगमेंट है. दिस इज मेजर सेगमेंट एंड दिस वन, द ब्लू वन, दिस इज द माइनर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट इज द बड़े वाली एंड माइनर इज द स्मॉलर वन. वेरी इजी, राइट? तो देखना बेटा, ये वाली जो आर्क है, हम ये बोल सकते हैं दिस इज द आर्क corresponding means matching, arc corresponding to chord. ठीक है, AB arc corresponding to chord AB. ठीक है, we can call this as the chord, minor chord corresponding means matching, उस chord की arc. ये उस chord की arc आ जाएगा समझ में आपको? chord की arc का मतलब क्या? So I am having to revise this. One of the lectures which I sent live on YouTube earlier, it did not have sound. So very quickly I will revise the old parts, and then tomorrow also we will continue with this so that we can finish off. Okay, अगर मैं A पॉइंट को O से ज्वाइन करता हूँ और मैं B पॉइंट को भी O से ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ऑब्वियसली इस एंगल का नाम तो हम रख सकते हैं AOB. बट अब इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आप बताओ? व्हाट डू वी कॉल दिस एंगल एज? वी कॉल इट एज द एंगल subtended. We call this as the angle subtended at the center. क्या बोलते हैं इसको? We call this as the angle subtended by the center. Angle subtended at the center by the chord. Angle subtended at the center by the chord AB. Angle subtended at the center by the chord AB. We can also call it as the angle subtended at the center by the arc AB. Okay. So angle subtended at the center by the chord AB and angle subtended at the center by the arc AB. एक ही एंगल है, chord ने भी वही एंगल बनाया है सेंटर पर, और आर्क ने भी वही एंगल बनाया है सेंटर के ऊपर, राइट? chord ने भी वही एंगल बनाया, आर्क ने भी वही एंगल बनाया. एंगल subtended at the center by the chord AB और आर्क AB. वेरी इजी. ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट अस थिंक अबाउट दिस chord.
राइट। अगर मैं सर्कल के यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लूँ, लेट मी टेक अ पॉइंट हियर, और मैं क्या करता हूँ, मैं ए पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और बी पॉइंट को भी इससे ज्वाइन कर देता हूँ। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज सी, then this is also an angle. What do I call at angle ACB? What do we call at angle ACB? Angle ACB is also an angle subtended by the chord AB, but not at center. Angle subtended by chord AB on the circle. ऐसे बोलना, on the circle. AOB is the angle subtended by the chord at the center, and ACB is the angle subtended by the chord on the circle. ठीक है। तो आप एक और चीज देखो, अगर मैं यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो डी, तो कैन वी से ADB इज ऑल्सो एन एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड? क्या ADB भी तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड है कि नहीं? कैन वी नॉट से दैट ADB इज ऑल्सो एन एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड AB? ADB is also the angle subtended by the same chord AB. One of the angles is subtended in the minor segment. एक एंगल कौन सी सेगमेंट में सबटेंड हुआ है? माइनर सेगमेंट में. Angle ADB is the angle subtended by the chord AB in minor segment, and this is the angle subtended by the chord AB in the major segment. ये मेजर सेगमेंट में एंगल बना. चलो अच्छा, आप पहले इस फिगर को देखो. कैन एनीवन टेल मी ABCD क्या है? What kind of figure is ABCD? Figure ABCD is a quadrilateral. What is figure ABCD? It is a quadrilateral. तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे. पहले आपने ये चीज की हुई है थोड़ी सी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. मैंने कोई भी सर्कल बना दिया और मैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ. ये क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल इज इनक्लोज्ड इन दी सर्कल. मतलब ये सर्कल में बंद है, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं आ रहा. कहीं बाहर आ रहा है इसका पार्ट? नहीं आ रहा. So it is enclosed in the circle. But what about this quadrilateral? What about this quadrilateral? इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इस क्वाड्रिलेटरल के जो कॉर्नर्स हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स चारों, यही होते हैं ना कॉर्नर्स. तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर्स, they lie on the circle. All four corners lie on the circle. तो मुझे बताएगा ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? जिसके चारों कॉर्नर सर्कल के बाउंड्री के ऊपर आते हैं. If all the 4 points they lie on the boundary of the circle, what kind of a quadrilateral it is called as? हाँ, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पर आते हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. समझ में आ जाएगा? साइक्लिक, ये वर्ड यूज करना है, साइक्लिक. वेरी इजी. अंडरस्टूड? सो बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. तो अब जैसे आप देखो, अगर मैं बी और डी को ज्वाइन कर देता हूं, तो बी और डी क्या बनेगा? विल इट बी अ डायमीटर और नॉट? विल BD be a diameter or not? It is not necessary. BD diameter हो ये जरूरी नहीं है, but BD will definitely be a chord, and this is the angle subtended by this chord. Angle A is the angle subtended by this chord in one segment, and angle C is the angle subtended by this chord
इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट मीन्स दूसरे वाले। दो सेगमेंट्स है ना, कॉर्ड ए बी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करने वाली कितनी सेगमेंट्स हैं? कॉर्ड ए बी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करने वाली दो सेगमेंट्स हैं। कौन सी? एक सेगमेंट तो है बी ए डी सेगमेंट, ये वाली बी ए डी सेगमेंट है। और दूसरी सेगमेंट कौन सी है? बी सी डी। बी सी डी ये वाली सेगमेंट है। अंडरस्टूड? तो ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या है वो बता रहा हूँ। ऑल्टरनेट मतलब दूसरे वाली, तो आपको पता चल जाएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट। So always remember what the segment means, then you should remember what a alternate segment means. Okay, let us very quickly revise all the things which we did earlier from this chapter. हमने जो बाकी की चीजें की थी उनको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। Just a minute, I will just show you. जो हमने पहले किया था, because we need to revise it. देखो, याद करने की कोशिश करो। इक्वल कॉर्ड्स कोई लिखेगा नहीं, ये सब मैं आपको प्रिंट भेज दूंगा सभी थ्योरम्स की, समझने पे कोशिश करो, because I will very quickly revise all the results. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center of the circle. मतलब अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि पहले करा चुका हूं। अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है और उसके हम दो कॉर्ड लेने, एक यहाँ ले लें, कहीं भी दूसरा ले लो, एक यहाँ ले लो, ये दो कॉर्ड्स ले लो। So we have taken two chords. We have taken two chords. Let us take a center also. Suppose this is the center. इस कॉर्ड का नाम रख देते हैं ए बी, इस कॉर्ड का नाम रख देते हैं सी डी। अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज गिवन, एंड सपोज सेंटर इज ओ, देन व्हाट कैन वी से? इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन व्हाट कैन वी से? Then angle AOB. What is angle AOB? Angle AOB is the angle subtended at the center, subtend at the center by the chord AB. And what is the angle subtended by the chord CD at the center? CD का एंगल कितना आएगा? COD. तो ये दोनों इक्वल आएंगे, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स बनाएंगे सेंटर के ऊपर। याद रह जाएगा आपको? अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स मीन्स बिल्कुल इसका विपरीत, उल्टा, बिल्कुल रिवर्स। उसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें गिवन था ये, दिख रहा है आपको? ये गिवन था, उसमें गिवन कुछ और है। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसी का कन्वर्स। उसमें गिवन क्या है कि आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, लेट्स कॉल दिस कॉर्ड एज ए बी एंड सी डी अगेन, इनके भी सामने नाम है, लेकिन अब गिवन क्या है बताओ? इफ देन। अब क्या गिवन है बताओ? अब गिवन है कि मान लो ये एक जितने एंगल्स बनाते हैं, अगर ये एक जितने एंगल्स बनाते हैं, ये गिवन है, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि कॉर्ड्स इक्वल होने चाहिए। तो दोनों तरीके से चलता है ये। अगर एंगल्स एट द सेंटर इक्वल बना रहे हैं दो कॉर्ड्स, तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगे, और अगर कॉर्ड्स दो इक्वल हैं तो वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे। वेरी इजी। I can go faster because you have the benefit of recording also. Later on you must memorize all these results as we did earlier also one day. Okay. बेटा देखना, अभी मैं कोई भी सर्कल बना रहा हूँ, फिर हम ये 3 और 4 नंबर थ्योरम्स को पढ़ेंगे। ये सर्कल है, अंडरस्टूड? राइट और रॉन्ग? एंड इफ आई टेक वन पॉइंट ऑन दिस सर्कल, सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P से Q, तो आई गेट द माइनर आर्क PQ or not? Minor arc PQ. I can also have major arc PQ, major arc PQ. अब इसमें इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है?
इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि जो आर्क होता है, आर्क हैज ए लेंथ, एवरी आर्क हैज ए लेंथ। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लो और पूरे सर्कल का राउंड लगाकर दोबारा वापस यहीं पर आ जाओ, तो टोटल कितनी लेंथ आएगी? अगर हम सर्कल के एक पॉइंट से शुरू होकर पूरा राउंड लगाकर दोबारा यहीं आ जाएंगे तो टोटल कितनी लेंथ आएगी? दिस लेंथ इज 2 पाई आर, लेंथ इज 2 पाई आर, 2 पाई आर, वेयर आर इज दी, ये अगर सेंटर, आर इज द रेडियस, व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अंडरस्टूड? R is the radius of the circle, 2 pi r। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर पूरे सर्कल की लेंथ 2 पाई r, तो क्या ये जो हमारा आर्क है इसकी भी कुछ लेंथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आर्क विल ऑल्सो हैव अ लेंथ, आर्क विल ऑल्सो हैव अ लेंथ, समझ में आया? एवरी आर्क विल हैव अ लेंथ। और अगर मैं इस आर्क की लेंथ को माइनर आर्क पी क्यू और मेजर आर्क पी क्यू, इन दोनों की जो लेंथ है L1 प्लस L2, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा बताओ? अगर मैं इन दोनों आर्क्स की लेंथ को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, सोचो। तो बेटा L1 प्लस L2 करके हमें, हाँ, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा कि नहीं? वेरी गुड, वी गेट द कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि हर सर्कल का कोई भी अगर हम आर्क लेते हैं, कोई भी अगर हम आर्क लेते हैं, जैसे पी क्यू हमने एक आर्क लिया तो उस आर्क की कुछ लेंथ होती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर मैंने ये सेंटर बनाया, मैंने O को P से ज्वाइन किया, मैंने O को Q से ज्वाइन किया, तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड, X ले लो इस एंगल को। एंगल POQ को कितना बना दिया मैंने? एंगल POQ को बना दिया मैंने X डिग्रीज। तो जिस आर्क के द्वारा ज्यादा बड़ा एंगल बनाया जाता है सेंटर पर, more the value of the angle subtended at the center by an arc, more is the length of the arc। अगर मैं एक आर्क यहाँ पे ले लूं AB, ज्यादा लंबा आर्क है कि नहीं AB, और मैंने O को A से ज्वाइन किया और O को B से ज्वाइन किया, तो वो ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है। तो जितना बड़ा आर्क होगा, जितना बड़ा आर्क होगा, जितनी ज्यादा लेंथ का आर्क होगा, वो सर्कल के सेंटर पे उतना ही ज्यादा एंगल बनाएगा। ऐसे लिखते हैं बेटा, X is proportional to L। What is L? L is the length of this arc. More the length of the arc, more is the angle made at the center. Understood? Okay. More is the length of the arc, more is the angle made at the center. So every arc has a length। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे भी एक CD आर्क एक और ले लेता। अगर ये दो आर्क हैं, दो आर्क कौन से आए? माइनर आर्क, एक तो PQ आ गया और एक CD आ गया। तो ये आर्क्स इक्वल कब होंगे? जब इनकी लेंथ सेम है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर सेम है तो इन आर्क्स को हम क्या बोलते हैं? अगर दो आर्क्स की लेंथ सेम है तो उन आर्क्स को क्या बोला जाता है? उन आर्क्स को हम बोलते हैं, ये देखो, congruent arcs। What do we call them? Congruent arcs। So if two arcs of a circle, if two arcs of a circle have same length, they are called as congruent arcs। ठीक है, समझ में आएगा? congruent arcs। तो मान लो मैंने एक यहाँ पे EF आर्क ले लिया, एक मैंने ले लिया PQ आर्क, ये रहा PQ, और एक मैंने ले लिया EF। ठीक है, अब अगर ये दोनों आर्क्स की लेंथ सेम है, अगर दोनों आर्क्स की लेंथ, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीज स्ट्रेट लाइंस? एक हमारे पास है कॉर्ड PQ और एक हमारे पास है कॉर्ड EF।
ठीक है। इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो आर्क्स एक जितने लंबे हैं तो उनके जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल आएंगे। समझ में आपको? इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ देन, ठीक है। क्या आएगा बताओ? इफ लेंथ ऑफ पी क्यू आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई एफ आर्क, ठीक है, देन chord PQ is equal in length to chord EF, ये दोनों इक्वल आएंगे, दिस एंड दिस विल बी इक्वल। इसका उल्टा क्या बनेगा? कन्वर्स। कन्वर्स याद रख लोगे इसका? व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस? कन्वर्स में आपको दिया है कि ये जो कॉर्ड है ए बी और ये जो कॉर्ड है सी डी, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। अगेन इफ देन बनाओ, इफ देन, तो अब आपको क्या दिया हुआ है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ठीक है। और देन मतलब हम क्या बोल सकते हैं? देन इट मीन्स कि जो आर्क ए बी है इट विल बी कॉन्ग्रुएंट। आप कॉन्ग्रुएंट का साइन भी डाल सकते हो ऐसे, ठीक है। इट विल बी कॉन्ग्रुएंट मतलब उसकी लेंथ किसकी लेंथ के सेम होगी? सी डी आर्क की लेंथ के सेम होगी। कर लेंगे, पहले किया हुआ हमने तो जल्दी कर सकते हैं। वी कैन डू स्लाइटली फास्टर। तो अब देखो आगे, आगे क्या आएगा सर बताओ? हाँ जी, बहुत ही ईजी है। अब दोबारा से सर्कल बना दो, ये आपने सर्कल बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल बना, ये आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक। अब ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, तो देखना यहाँ पे ऊपर अलग से ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी। चलो स्ट्रेट लाइन ही बना दो। और मैं आप क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, P डज नॉट लाई ऑन ए बी, ठीक है। तो और एक पॉइंट मैं यहाँ बना लेता हूँ Q, दो पॉइंट बना लेता हूँ, एक P बना दिया Q। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस लाइन के पास ज्यादा कौन सा पॉइंट है? विच इज नियरर टू P, विच इज नियरर टू ए बी लाइन? ए बी लाइन के पास कौन सा पॉइंट है? ज्यादा पास P है या ज्यादा पास Q है? तो आप कहोगे देखने से तो P पॉइंट लग रहा है, बट हम एग्जैक्टली कैसे बताते हैं? हाउ डू वी टेल कि ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है, एंड हाउ डू वी टेल कि ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है ना? तो उसका मेथड क्या होता है? हम पॉइंट से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। डोंट जस्ट टेक एनी लाइन, ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, वी हैव टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, ये बोलते हैं ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। तो P से भी परपेंडिकुलर डाल दिया और Q से भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये Q से परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, MP NP। तो Q का डिस्टेंस कितना है लाइन से? व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम AB? इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर NQ, ठीक है। और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम AB? वो इस परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी NP। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से परपेंडिकुलर की लेंथ लेकर बता सकते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल ही ईजी है। आगे चलते हैं। अब मान लो मैंने एक कॉर्ड बना दिया ए बी, ये आपके पास एक कॉर्ड है ए बी। अब देखो क्या दिया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ये कुछ थोड़ा सा अलग है जो मैं बता रहा था उससे। ये मान लो सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया
सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, कहाँ पे डाला परपेंडिकुलर? ए बी पर, ठीक है। तो देन एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो अगर आप ओ से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दोगे वो मिड पॉइंट नहीं आएगा। अगर मैंने मान लीजिए ओ से लेकर ए बी तक कोई भी लाइन ड्रॉ कर, सपोज मैंने ओ से लेकर ए बी तक ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ये, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एम मिड पॉइंट आएगा ए बी का? नहीं, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ, ये ओ पॉइंट है, अगर ये 90 डिग्रीज है, ओ एम इज परपेंडिकुलर ए बी, then if OM is perpendicular AB, then what can I say? Then AM is equal to MB. तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर है, सेंटर से मैंने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा? ये सेंटर है, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो AM और MB इक्वल होंगे बिकॉज इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब इसका कन्वर्स बना देंगे। कन्वर्स, कन्वर्स क्या आएगा? कन्वर्स ये आएगा कि अगर हमारे पास कोई भी कॉर्ड है, ठीक है, कोई भी कॉर्ड है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ठीक है, तो ए बी इज अ कॉर्ड। अब मान लो मैं आपको बोलता हूं कि इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है ये एम, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ओ को एम से ज्वाइन करता हूं, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टिल द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ओ एम क्या बन जाएगी? सेंटर से लेकर कॉर्ड के मिड पॉइंट तक की लाइन। तो हम क्या कंक्लूजन करेंगे कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो पहले वाले में हमने क्या किया था कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कह रहे हैं द लाइन फ्रॉम द सेंटर, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों ने ये चीजें पहले कर ली हैं, तो मैं आज एक बार ब्रशअप करा रहा हूँ आपको, फिर कल हम आगे चल पाएंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं किए हैं वो इसका वीडियो देख के एक बार दोबारा से समझे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। हाँ जी सर, अब बताओ क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट? देखो ये हमारे पास सर्कल का, ये सर्कल है हमारे पास, सपोज दिस इज द सर्कल लाइक दिस। अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लो मैं इसमें कोई भी दो कॉर्ड्स बना देता हूँ, एक यहाँ कॉर्ड बना देता हूँ और एक मैं यहाँ कॉर्ड बना देता हूँ। कितने कॉर्ड बनाए? दो, कोई भी कॉर्ड। अब आप, ए बी एक कॉर्ड है, क्या हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं? सबको मालूम है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है? हाउ डू वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी? एवरीवन नोज दैट? हाँ जी सर। क्या करते हैं हम? पहले ए को लेकर और कॉम्पस को आधा खोलकर, आधे से ज्यादा खोलकर और ऐसे घुमाते हैं कि नहीं? ओके, ऐसे नहीं, ये तो अभी थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है कॉम्पस, थोड़ा सा कम खोलना पड़ेगा, बट आई माइट नॉट रिमेम्बर दी रूल्स ऑफ दिस। ये ऐसे करते हैं, चलो ठीक है। तो उसके बाद आपको हाथ से ज्यादा खोल के ऐसे आर्क लगाना होता है कि नहीं? ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लाते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको दूसरी तरफ ले जाके ऐसे आर्क लगाते हैं। नहीं, ये तो मैंने रफली बना दी थी ना पहले डॉटेड लाइन। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है कॉर्ड का, राइट? कर लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड का? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया,
किस कॉर्ड का? ए बी कॉर्ड का। और ये कौन सा कॉर्ड है? सी डी। ये सी डी कॉर्ड है। सी डी कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। ठीक है, तो आपने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ए सी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, समझ में आएगा आपको? ये देखो, दो कॉर्ड है ए बी सी डी। कंफ्यूज नहीं हो ना, कॉर्ड कहीं पे भी ले सकते हैं, कॉर्ड कहीं पे भी लो, डज नॉट मैटर। ये कोई भी कॉर्ड ले लो कहीं पर, ये दूसरा कॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ गया सी डी कॉर्ड, ये आपके पास सी डी कॉर्ड। ठीक है, अब क्या क्या थ्योरम है पढ़ना? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड्स। कैसे बनते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉम्पस से? ये तो आपको पहले से मालूम है, ये अभी नहीं पढ़ना है। आपको सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये मान लो सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज, और जो ई पॉइंट है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ सीडी। अब किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है? एबी का। एबी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। तो मान लो ये एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कहां पर मिलते हैं? जहां पे भी वो मिलते हैं वो सेंटर होता है सर। ठीक है, सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द chords, they will meet at the center. Understood? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसी को नहीं आते, वो मेरे से इस मीटिंग के बाद एकदम से एक्स्ट्रा टाइम लेकर पूछ लेना कि सर ये क्या होता है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये तो आपने छोटी क्लास से किया हुआ है। अच्छा, आप देखो एक थ्योरम, देखो जरा जल्दी से। ये अभी हमारे पास फिर से एक सर्कल है, दिस अ सर्कल। इस सर्कल में मैं दो कॉर्ड्स बना रहा हूँ। एक कॉर्ड मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और एक कॉर्ड मैंने यहाँ पे बना दिया। अब थ्योरम पढ़ो। अब मान लो ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, इनकी लेंथ सेम है, इनकी लेंथ सेम है। इफ देर आर टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इफ देर आर टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस आएगा, सेंटर से उनका डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस सेंटर से कैसे आएगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो ओ एम, एम ओ क्या है? एम ओ इज डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर। और अगर मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो एनओ क्या है? एनओ, एनओ इज डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम ओ। तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, समझ में आपको? फिर से ऐसे लिखते हैं, इफ देन। इफ का मतलब if AB is equal in length to CD chord, then जो उनके डिस्टेंस आएंगे सेंटर से MO और NO वो भी इक्वल आए। If two chords are of equal length, then their distances from the center are also equal. अब इसका बिल्कुल उल्टा क्या बनेगा? बिल्कुल रिवर्स। इसका बिल्कुल उल्टा ये बनेगा कि मान लो आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, पर आपको ये नहीं मालूम कि ये इक्वल है या नहीं, पर आपको किसी ने बता दिया कि इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये फर्स्ट कॉर्ड है, ये इसका डिस्टेंस है सेंटर से, ये सेकंड कॉर्ड है, ये इसका डिस्टेंस है सेंटर से। O इज दी सेंटर। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको इफ देन, अब दिया क्या है बताओ? आपको दिया है कि MO और NO इक्वल है, तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि कॉर्ड्स भी इक्वल आएंगे।
then PQ will be equal to EF. So if two chords are equal distance from the center, अगर दो chords center से एक जितने distance पर OM and ON are equal, if two chords are at equal distance from the center, then those chords must be equal. Those chords must be equal. समझ में बेटा? चलिए आगे चलते हैं। देखो देखो, ये तो सब रिजल्ट कर चुके हैं, हम दोबारा से जल्दी से करा रहे हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सबको मालूम है क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक पॉइंट है ए, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है? स्ट्रेट लाइन बना दी। अब मैंने एक पॉइंट इस पर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने कितने पॉइंट्स ले लिए? स्ट्रेट लाइन का कुछ नाम रख ले। लेट्स कॉल दिस स्ट्रेट लाइन एज L. Let's call this straight line as L. So can we say that the points A and B, can we say A and B are collinear? क्या A और B को हम collinear बोल सकते हैं? दो पॉइंट्स तो कोई भी कोलिनियर हो जाएंगे जो सेम लाइन पे आएंगे, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट्स लोगे तो उनमें से एक लाइन तो बन ही जाएगी। अब मैं जो तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ वो यहां ले लेता हूं, C does not lie on this line, तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं which don't lie on the same line। तो इन तीनों पॉइंट्स में से एक सर्कल पास करेगा। अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए जाएं तो उनमें से एक सर्कल जरूर पास करेगा, और सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा, वही, और कोई नहीं है। अगर हम कोई भी तीन पॉइंट्स लें उनमें से एक सर्कल पास करता है और वही एक सर्कल पास करता है, उसके अलावा कोई नहीं करता। अगर मैं बोलता हूँ कि तीन पॉइंट में से एक सर्कल पास करता है, तो इसका मतलब है कि एक सर्कल तो पक्का पास करता है, ठीक है? और भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ वन एंड ओनली वन, तो उसका मतलब एक करता है और वही एक करता है, उसके अलावा कोई नहीं करता। तो अब वो सर्कल कैसे ड्रॉ करना है? पहले आप ए और सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है? हाउ डू वी ड्रॉ द सर्कल विच पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? फर्स्ट ज्वाइन ए एंड सी एंड देन ज्वाइन सी एंड बी, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बताओ, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। सबको आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना? एसी का अभी बताया था, फिर बता देता हूँ, एक दो बच्चों को डाउट था। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे बताओ? पहले हम ए पे ले जाएंगे कॉम्पस को, फिर हम कॉम्पस को कितना खोलेंगे? हाफ से ज्यादा, नहीं, हाफ से ज्यादा खोलना है। कितना खोलना है? हाफ से ज्यादा। अभी ये हाफ से ज्यादा खुला हुआ है, और इसको ऐसे आर्क लगा दो, पूरे में ऐसे आर्क लगा, ठीक है? फिर इसको इधर ले आओ। अब क्या करना है? कॉम्पस तो खुली हुई है आपकी हाफ से ज्यादा, तो ध्यान से रखना पड़ेगा। हाँ, कॉम्पस तो हाफ से ज्यादा खुली हुई है। अब दोबारा से आप एक आर्क लगा दो, ज्यादा बड़ी आर्क लगी पर कोई बात नहीं। अब इन दोनों पॉइंट्स में से मैं अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये क्या होएगा? मिड पॉइंट। ये पॉइंट क्या आएगा? मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो हमने ये जो लाइन है ये दिख रही है आपको, ये फिर आई ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एसी की। ऐसे बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो कि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुश्किल है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, ठीक है? एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है? दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर मिलेंगे? सेंटर के ऊपर। कहां मिलेंगे दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? सेंटर के ऊपर। अब क्या करना है तो बताएगा, अब क्या करना है? अब कॉम्पस को लेके आएंगे और कितना खोलेंगे कॉम्पस को? कॉम्पस को खोलना है इतना, ठीक है?
यहां से यहां तक, ओ से लेकर, मान लो इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं डी पॉइंट, ओ से लेकर डी तक खोल दो, खोल दोगे ओ से लेकर डी तक कॉम्पस को। फिर क्या करना है, फिर बस आपको ओ से डी तक खोल, ओके, ओ से डी तक नहीं खोलना, ओ से सी तक खोलना, या तो ओ से सी तक खोलो या ओ से बी तक। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ओपन द कॉम्पस फ्रॉम ओ टू कॉम्पस, चलो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही इसको प्रैक्टिस कर रहा था, तो चलो ये ओ से लेकर सी तक खोल दो या ओ से लेके बी तक खोल दो, तो ओ से बी तक खोल देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे। चलो लेट्स होप याद है, ओ से बी तक आपने खोल दिया, अब आप इसको घुमा के ऐसे जब बनाओगे तो एक सर्कल बनेगा जो कि तीनों पॉइंट में से पास होगा। अब आप कहोगे ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ध्यान से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाए, पर अप्रोक्सीमेटली हो रहा है कि नहीं, ठीक है? अगर मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ध्यान से बनाता तो ये सी में से भी पास हो जाता, पर इतना टाइम नहीं है, तो आप खुद कर लेना अपने आप से प्रैक्टिस, ठीक है? कर दोगे अपने आप से प्रैक्टिस, ठीक है? ये देखो हो गया ना पास, ठीक है? तो इजी है बिल्कुल ही। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्शंस में आएगा आपको, ठीक है? व्हेन यू डू कंस्ट्रक्शन, कि आपको अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं तो उनमें से सर्कल कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट दो थ्योरम देखो आप, अगर हमारे पास किसी सर्कल में दो कॉर्ड हैं तो बड़े वाला कौन सा होता है, बताया था कुछ? अगर आपके पास किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स, ये आपके पास एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड्स बना देते हैं, बना दें? पहले सर्कल अच्छा बनाते हैं, किसी भी सर्कल में कौन बताएगा? हाँ, मेजर नहीं बेटा, मेजर कॉर्ड वर्ड नहीं होता, ठीक है ना? देखो आप, एक कॉर्ड है ये, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड है ये, ठीक है? कौन सा बड़ा है ये बताना आसान है कि नहीं? पी क्यू बड़ा है या ए बी बड़ा है? पी क्यू बड़ा है, ठीक है? तो विच कॉर्ड इज लार्जर इन अ गिवन सर्कल, आउट ऑफ टू कॉर्ड्स द लार्जर वन, बड़ा कौन सा है? पी क्यू, है ना? तो इसमें गिवन क्या है आप देखो, इफ देन, अगर हमें दिया क्या है, अगर हमें दिया है कि पी क्यू है वो ए बी से बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो जो ज्यादा बड़ा कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर के पास होता है, लार्जर वन इज नियरर टू द सेंटर। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ओ एम, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ओ एन। तो जो ज्यादा बड़ा कॉर्ड है उसका डिस्टेंस सेंटर से कम आएगा, छोटा कॉर्ड ज्यादा दूर आएगा, क्लियर? जो अगली थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है, ठीक है? अगली वाली थ्योरम इसी का कन्वर्स है। उसमें आपको बताया है कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है? तो कौन सा बड़ा है आपको इनमें से नहीं बताया हुआ, कौन सा बड़ा है नहीं बताया, लेकिन आपको बताया क्या है, आपको ये बताया है कि भाई जो आपका ए बी कॉर्ड है, जो आपका ए बी कॉर्ड है वो सेंटर से पास में है। मतलब ओ एम जो है वो अगर ओ एन से कम है, अगर आपको इफ देन दिया क्या हुआ है कि एम ओ कम है और एन ओ ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन? सर्कल के दो कॉर्ड में से जो पास में होता है, नियरर वन, पास में कौन सा है? ये वाला पास में, जो पास वाला है वो ज्यादा बड़ा कॉर्ड होता है, क्लियर है? द वन विच इज नियरर इज longer of the two chords, understood?
तो वेरी इजी, आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच यू, बस मैं आपको दो रिजल्ट्स और बताऊंगा और उसके बाद आपको आज मैं ये सारे भेज रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बिकॉज tomorrow again we will have to do live class only, I have no other option, but I hope day after tomorrow onwards we will be able to solve numericals or questions of this chapter here only. पहले हम इसी चैप्टर को खत्म करना चाहते हैं, तो आई हैव नो अदर वे आउट एक्सेप्ट कि मुझे ये आपको दोबारा से कराना पड़ता है रिवाइज, इसलिए मैंने करा दिया बेटा इसको, और कोई तरीका नहीं था, कुछ बच्चों के पास ओरिजिनल साउंड वाला लेक्चर नहीं गया था। तो if two arcs of congruent circles are congruent, then their corresponding chords are equal. देखो, when are two circles congruent? कोई मुझे बताएगा दो सर्कल्स को हम congruent कब बोलते हैं? जो बताओ, when are two circles congruent? Two circles will be congruent if they have the same radius. Yes, if they have the same radius. Two circles are congruent if their radius are same. यदि इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल है तो ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए? क्योंकि दोनों का जो साइज है एक दूसरे को कवर कर सकता है। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये छुप जाएगा और इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये छुप जाएगा, ठीक है? तो अब रिजल्ट क्या है? ये दो अलग अलग सर्कल हैं, दो अलग अलग सर्कल हैं, पर इनके रेडियस इक्वल है, इनके रेडियस इक्वल है। तो अगर मैं इनके दो ऐसे आर्क लूं, एक आर्क मैं इसका लूंगा ये वाला, और एक आर्क में इसका लूंगा ये वाला, ठीक है? अगर ये जो दोनों आर्क हैं इनकी लेंथ भी इक्वल है, अगर इन दोनों आर्क की लेंथ भी इक्वल है तो इनके जो कॉर्ड्स आएंगे, इनके जो कॉर्ड्स आएंगे, इनके जो कॉर्ड्स आएंगे वो भी इक्वल लेंथ के आएंगे। तो ए बी और सी डी दोनों इक्वल लेंथ के आएंगे, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, मैं यहीं पे ब्रेक लगा लेता हूँ, ज्यादा बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं बनती है लाइव क्लास में,